سفر ہوگا مختلف، دوزخ میں دفن ہوں گے کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسد خروش، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ پوری دنیا سے عزاداران امام مظلوم کربلا کے اندر تشریف فرما ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تھکاوٹ ضرور ہے اور تمہارے پاس ایک علی جیسا ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے۔ ہمارے پاس 14 علی ہے، سجدہ پھر بھی جلی جگہ ہے۔ حضرت سید آپ کو سلام۔ ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی جلی کا کر رہے ہیں۔ پھر مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کے سوال کرتے ہیں وہ کون سا سورج ہے، وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے۔ آپ کے چھٹے اور صادق مولا، اگر کوئی بندہ کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہے، ابھی میرے فون میں کم از کم 10 تفسیریں موجود ہیں۔ اگر بندہ حوالہ دیکھنا چاہے میں ابھی دکھاتا ہوں۔ مولا صادق سے سوال کیا گیا، مولا بتائیں وہ کون سا سورج ہے، وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے۔ تو آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا کہ عید الفطر کا روز تھا، آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا۔ عباس اور دنیا میں آنے کی تاریخ دیکھیے، حسین آئے 3 شعبان، عباس پیچھے پیچھے 4 شعبان۔ آپ سے دعا چاہیے۔ بھائی کیا کہتے ہیں۔ اچھا اور 4 مصرے میں زبیری صاحب بھی آپ کو سنا دیں۔ وہ کہتے ہیں جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا۔ یہ تو ہے ہی کربلا، ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی روز سفر کرتے ہیں، جو مسافر ہے دیکھے وہ میری طرف۔ وہ کہتے ہیں جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا، اور تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، اور جب کبھی سفر میں عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا۔ بار بار انتظامیہ کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، مہربانی فرمائے، آگے کافی جگہ ہے۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ تھوڑی آگے جگہ ہے، تھوڑا سا آگے بسم اللہ۔ یہی فرق پڑا ہے، وہ ناگے بھی پڑتا ہے آنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا رستہ۔ ایک سجدہ ذکر مولا حسین کی بارگاہ میں سنے اور ایک مولا عباس کی بارگاہ میں سنے، اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ میری شاعری والا مزاج آن کر دیا ہے تو بھائی جو معافی لینے آئے ہو تو ہاتھ اٹھا لیں۔ جس کا نام سن کہنے لگا دیکھ اب عباس کا سر ناوی دفعہ نوکے نیزوں سے زمین پہ گر گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ وہ کمینہ کہتا ہے دوبارہ نیزے پہ بلند کر، وہ ماتم کر کے کہتا ہے دیکھ اب عباس کا سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے پھر کوئی ایسا کام کر کہ علی کی بیٹیوں کو کربلا یاد آ جائے۔ ماتمیوں، اس نے عباس کا سر لیا، ایک رسی لی، ایک نیزہ لیا اور وہاں آ گیا جہاں علی کی 9 بیٹیاں ایک رسی میں
اور میرے حیدر نے کہاں کوئی فضیلت چاہی، ہر جگہ خود ہی فضائل نے علی کو ڈھونڈا۔ ملتمس ہوں ہمارے ملک پاکستان کا ایک بہت رکشا نام اور شاعر برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام قارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التہامی السید البہی والسراج المزید الکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات الذین شعب الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کریں۔ وقت کم ہے تو ذرا دعاؤں سے نوازتے رہیے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ 28 رجب میرے امام نے مدینہ چھوڑا، یہ واقعہ 27 رجب کا۔ دربار ولید میں میرے مولا کو بلایا گیا اور جس وقت درباریوں کو پتہ چلا کہ امام دربار میں آ رہے ہیں کہ علی کے لال نے باپ کے دشمنوں کے دربار میں خط زمین پہ پھینکا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم ایک یزید کی بات کرتے ہو۔ حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ حضور 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 آپ کو تو ایسے دیکھنا بنتا ہے۔ سامعین میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، 2026 کے مزاج کا مصرع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انقلاب پسند لوگ ہیں جنہوں نے جوش ملی آبادی سے علامہ اقبال تک کو پڑھا ہے اپنے کم از کم اسکول کے نصاب میں وہ تصدیق کریں گے۔ دوسرا مصرع اتنا قیمتی ہے، میرا آپ میں پڑھنا آسان ہے۔ باپ کے دشمنوں کا دربار ہے، امام کربلا کے لیے اگلے دن سفر شروع کرنے کو ہے اور ایک دن پہلے باپ کے دشمنوں کے دربار میں باپ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ ہر کا ضمیر کروٹ بدل، آپ مجھے دیکھتے رہیے گا وقت کم ہے۔ ضمیر کروٹ اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں نئی صبحوں کا یقین لے کر، نئی صبحوں کا یقین لے کر۔ آپ امام کو دیکھیے کہ وقار کہاں کھڑا ہے، عزم کہاں کھڑا ہے۔ حسین کربلا کے لیے نکل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں نئی صبحوں کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا، مجھے دیکھیں گے نہیں تو میں مصرع نہیں پڑھوں گا۔ یزیدیت کا وجود اب سے، خدا حسین کا واسطہ، حسین فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ ولید گھبراتا کیوں ہے؟ لکھ یزید کو، حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ باپ بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ والے بھی ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری، وہ باپ بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں، میں اس کی نسلیں۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا سرکار سوال بیعت فاسق ہے، اگر ایک جوان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ امام نے یزید کا بائیکاٹ کس لیے کیا تھا تو میرے خیال سے پھر مجلس میں آنے کا تو فائدہ نہ ہوا۔ اگر یہ بھی نہ پتا ہو کہ کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مولا نے کہا تھا کہ لا یبایعو مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھنا ہے، رکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے، بیعت ہی کرنی ہے، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سنیے گا سنیے گا۔ اس نے کہا وجہ پوچھ؟ حسین فرماتے ہیں بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا۔ مزاج آدم
मिजाज आदम गुरूर शैतान से कम हुआ। कहता नहीं हुआ। हुसैन फरमाते हैं कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ? कहता ये भी नहीं हुआ। हुसैन फरमाते हैं किसी भी नमरूद के सितम से कोई इब्राहीम कम हुआ? कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ। कहीं नहीं के फिरौन जैसे से, मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए हैं, आपके पहले भी आजाद थे। कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को तवज्जो है। हुसैन फरमाते हैं कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ। अरे हुसैन ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। न कभी आदम ने शैतान की बैत की, न कभी इब्राहीम ने नमरूद की बैत की, न कभी मूसा ने फिरौन की। कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ दो? शुमार हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है उसके एक भाई को अब्बास। मेरे मौला नाम पे रहमत नाज़िल करे। तो इतनी थकन के बाद भी हर कोई पूछता था अकबर के सर को देख के नेज़े की नोक पर। हर कोई पूछता था ये आबिद को रोक कर, बतलाओ मर गई है कि जिंदा है उसकी। समीन गिरामी करबला के मैदान का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा। मेरे बाद मेरे मोहतरम मेरे किबला सरकार अल्लामा आसिफ रज़ा साहब को पढ़ना है। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। इंशाल्लाह आप बेशक उनसे तस्दीक करवा लीजिएगा, मुझसे पहले बेहतर पढ़ने वालों से तस्दीक करवा लीजिएगा। वाक़यात करबला में से सबसे मुश्किल है जनाब अली अकबर की शहादत। जिस हुसैन ने हर लाश उठा ली थी, जनाब अली अकबर की लाश पर उसकी कमर टूट गई थी। उस बादशाह की आंखों का नूर खत्म हो गया। जनाबे अली अकबर का मसाइब है। बल्कि मैं जुमला पंजाबी गाता हूँ सिर्फ उस वजह तो भी ओ मोमिनीन का मिजाज भी मेरे नाल रल रहे जेड़े हुणे तक नहीं गले। साडे पंजाब दे जाकिर ने जनाब लियाकत मंदवाना साहब, मैं करबला खलो के उन्हां दे हक की दुआ करेना। क्या जुबान हाल दे बड़े जाकिर पर मैंने वाकया करबला दे बाद एक रात वास्ते जनाब अली अकबर दा कातिल सैयद सज्जाद दा मेहमान बनया। ये रोना मसला होया था। एक रात वास्ते अकबर दा कातिल मेहमान सैयद सज्जाद दा तारीख दी रात क़याम कीता तो सुबह वापस बनने लगा। जो भी हक के मेजबानी है भाईजान मेरे इमाम अदा कीता। लेकिन हुजूर जिस वेले वापस बनने लगा तो मेरे इमाम रोक या अकबर दा कातिल हुन रोक मैं जरा पर्दे चो मैं दी गल सुनाऊंगा। तारीख दी बाहर अकबर दा कातिल आई जे मैं वेख सो तो थोड़ी हाल करो सी। मेरे इमाम दी घाल निकली गए। अंदर आके अजीब मंजर देखे ने। बाहर अकबर दा कातिल आई, अंदर अकबर दी दुखी मां अपने हाथों से पानी का प्याला छाई। मेरे मौला इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अपनी आवाजें बुलंद करो मेरे भाइयों। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, कमजोर दिल अफराद से माजरा चाहता हूँ। जुमला नहीं है, क़यामत है, क़यामत। बिलखुसूस मेरी माएँ समझेंगी, मेरी बहनें समझेंगी, मेरी मुसल्लातियाँ जो बैठी हैं वो समझेंगी। अम्मा खैर आई, भाई अकबर दा कातिल मेहमान आई। सज्जाद मेरे अकबर दा कातिल नूं अपनी सब तो पहले एक दुखी मां दा तोहफा कबूल कर। सज्जाद जिस वेले वो पानी पी लवे ना, सज्जाद जिस वेले अकबर दा कातिल पानी पी लवे, करते आप लोग भाई, सज्जाद जिस वेले पानी पी लवे बस ठहर ठहर के पूछी अकबर दा कातिल अकबर दी दुखी मां पे यादी है मैं जवाब तो दे जे मेरे अकबर नूं बरछी मार लिया या तो भन्नी क्यों है।
अरे अकबर जैसे बेटे के सीने में बर्छी मारी। एक जुमला पढ़ना है, एक जुमला। इमाम हुसैन का शहर है, तारीख कहती है कम से कम 17 बार विदा किया है इमाम हुसैन ने, 17 विदे हैं। कुछ रिवायात में 36 विदे हैं जिनमें से 17 फकत इमाम हुसैन के साथ है। अब मुमकिन है कि ये जवान मेरी बात न समझे, मैं आप बुजुर्गों को पहले तारीफ मेरी कीजिएगा, मैं पहले आप लोगों से बात करता हूँ। सफेद रीश चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग साहिब औलाद हैं, इमाम हुसैन का शहर है। आप लोग, मैं आपका भी बैठूं, रखिए सर पे कुरान और मुझे बताइए जवान बेटा, अगर आधे घंटे के लिए भी घर से बाहर जा रहा हो, दिल के अंदर एक डर रहता है ना, हालात अच्छे नहीं है, जवान बेटा है, अल्लाह करे खैर से घर वापस आ जाए, अल्लाह करे खैर से जल्दी जल्दी घर को वापस लौट आए। आपकी सफेद दाढ़ी है, ये जहाँ से जो भी मातम कर रहे हैं मेरे मौला इनका पुरसा कबूल फरमाए। आप लोगों के दिल में रहता है डर। तारीख कहती है हुसैन जिस अकबर को मौत की तरफ रवाना कर रहे थे ना, उसे भेजते थे, फिर भेज के बुलाते, अकबर वापस आ, मैंने सीना नहीं छूना, अकबर अभी बाबा ने तेरी दाढ़ी नहीं छूनी, अकबर तेरे बाद दुनिया पे खाक है, अकबर तो मुंडो के सबर जो मैं जी अकबर मैंने तुम्हें रोज़े रसूल को मांगा है। मैं अपना, मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं मसाइब रोक कर आप जवानों की चीजें सुन रहा हूँ और एक जुमला मेरे लबों पर आ गया, मैं कह रहा हूँ। मुझे ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना, लेकिन बुजुर्ग तो हो रहे हैं, आप जवान ऐसे चीजें मार के न रोते, खुदा की कसम मैं कभी जुमला ना पढ़ता नहीं है मेरा जुमला। जुमला है अली जाफर अलवी मरहूम का, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे, कयामत बंद ऐसे एक जुमले में फरमाया करते थे, खुद अकबर की माँ फरमाती है, दुनिया के किसी कोने में मेरे अकबर की शहादत पड़ी जाए और सुनने वालों में कोई न रोए, तो अकबर की माँ मस्तूरात के पर्दे से उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती है, तुमने मेरा अकबर देखा जो नहीं था, तुम्हें क्या पता मेरा अकबर चलता कैसे था, मेरे अकबर की दाढ़ी कैसे। माता जो कर सकता माता, तुम्हें क्या पता मेरे अकबर की आवाज कैसे, तुम्हें क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसे। जी 17 बार भेजा, सुनिए 17 बार वापस बुलाया, मुझे पर्ची नहीं पढ़नी, मैं आपको पर्ची का लगना भी नहीं सुनाऊंगा, मुमकिन मैं पहले नंबर छोड़ दूं, लेकिन जितनी देर जनाब मेरी अकबर का मसाइब पढ़ूं, रोना न भी आए तो रोने का भी शक्ल बनाइएगा, जनाब अकबर के मसाइब में पराए बन के न बैठिएगा, चेहरा बताए कि सीने में क्या दर्द है। जब आखिरी बार हुसैन ने बुलाया तो जवान करीब आया, किधर देखिए बूढ़े बाप के चेहरे पे हाथ में पकड़ा, बाबा बाबा के अकबर की नसीब में शहादत नहीं है। अकबर आप अल्लाह के हवाले, अकबर आप इमाम बन के हुक्म दे रहे हैं, अकबर अब जाओ, अब मैं वापस नहीं बुलाऊंगा, हुक्म भी दे दिया, मैं वादा भी कर रहा हूँ, अकबर अब मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। अब सवाल है मेरा तुम इन जवान भाइयों से, ये जितने मेरे जवान भाई बैठे हो, जवान के दिल में दर्द उठा, बाबा ने बाप होने की मोहब्बत एक तरफ रख दी है और इमाम बन के वादा कर दिया बाबा वापस नहीं बुलाएंगे, बाबा ने इमाम बन के हुज्जत ने वादा कर दिया है, करते हैं मातम। जवान एक कदम बढ़ा, पता है बाबा ने नहीं बुलाना, दूसरा कदम बढ़ा, तीसरा कदम बढ़ा, चौथे कदम तक जब आवाज नहीं आई तो खुद मुड़ के कहता है, बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन बाबा अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता तो बाबा करबला में गर्मी बहुत ज्यादा है, बाबा ये लोहे की सिरा मेरे सीने पे, बाबा ये सिरा मेरे सीने को चीर रही है। अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर अल्लाह के, मैं जितनी जल्दी कर रहा हूँ उतनी होती नहीं है। हुजूर कयामत है, हुसैन के जवान बेटे का खैमों से निकल के मौत की तरफ जाना, ये इतनी बात मामूली नहीं है। उस बाप से पूछिए जो अकबर जैसे जवान बेटे को मौत की जानिब भेज रहे हैं।
अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर कुछ वक्त रह गया, तुम्हारे दादा बेगोसा के जाम उठा के तुम्हारे मुंतजर रहे। अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर ज़ीन पे आ गए, हुसैन जमीन पे खड़े हो गए, फिजा खेमे के दरवाजे पर आ गई, ज़ैनब आलिया मुसल्ले पर आ गई। मैं करबला मुअल्ला में हूँ, मैं बावजू इमाम हुसैन की नगरी में हूँ, मैं भरी जवानी में खड़ा हूँ और मैं मौला के मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, खुदा करे मेरी सांसें खत्म हो जाए, मैं ये जुमला न पढ़ूं, अब जो कुछ मैदान में हो रहा है। तो फिजा खेमे के दरवाजे से ज़ैनब आलिया को बता रही है, अम्मा मैदान की हालात कैसी है? ज़ैनब अकबर घोड़े पे सवार हो गया, अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब के अकबर सवार नहीं हुआ, पीछे से हुसैन ने भी चलना शुरू कर दिया, अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब अकबर का घोड़ा तेज हो रहा है, अम्मा अल्लाह के हवाले। जुमला पढ़ती करती है मातम, हुसैन के कदम भी तेज हो रहे हैं, अम्मा अल्लाह के हवाले। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो अब मातम नहीं करेगा। ज़ैनब अकबर ने घोड़ा और तेज किया है, हुसैन के कदम और तेज हुए हैं। अकबर ने घोड़े को और लगाई, गरीब ने सर से अम्मा में उतारा, अम्मा में उतार के टूटी हुई कमर से बांधा, तड़पी फिजा। अम्मा अब क्या हुआ? ज़ैनब क़यामत आ गई है, तेरा अकबर फौजों में घिर गया है, तेरा हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिर गया है। हाथ उठा के कहती है, याकूब को यूसुफ मिला है। ए याकूब को यूसुफ मिलाने मदद। इजाजत देते हैं पढ़ूंगा, मेरे हुसैन को अकबर मिला। और मजमून छोड़ देता हूं, मैं नहीं पढ़ता बर्छी कैसे लगी। अल्लामा नकवी फरमाते थे, हर शहीद नज़ीम छोड़ते हुए कहा, मौला मेरा आखिरी सलाम। सामीन में जुमला आराम से कह रहा हूं, मैं इस हॉल में बैठे हुए हर बंदे की हाय सुनना चाहता हूं। हर शहीद ने मेरे भाइयों का है, बाबा मेरा आखिरी सलाम। भाईजान वाहिद है अकबर जिसने कहा, बाबा एक तो मेरा आखिरी सलाम, और दूसरा बाबा मेरा लाशा लेने ना आना, यहाँ राशा होता है। तो मेरा गरीब बाबा, तो मेरा मजलूम बाबा, तो मेरा प्यासा बाबा, तो मेरा थका हुआ बाबा, और चचा अब्बास की मौत का मारा हुआ बाबा, बाबा लाशा लेने नहीं आना, बाबा यहाँ रश ज्यादा है, आधा मिनट और मिंबर छोड़ रहा हूं। मेरे इलाके का रिवाज है, मेरे गांव में मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। अल्लाह न करे जो अब तक नहीं रोया वो ज़हन हाजिर करे, उसकी भी इबादत होने वाली है। अल्लाह न करे बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए। लोग जनाजे तक बाप से छुपाते हैं, उसका जवान मरा है उसे पता नहीं चला। मैंने अपने गांव में ये मंजर अपनी आंखों से देखा मेरे भाइयों। और अगर तो आपको पता चल जाए कि मेरा जवान मर गया, हाय हाय हाय, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है इतने लोग जवान के जनाजे को नहीं उठाते जितने बूढ़े बाप को संभालते हैं। इसकी उम्र भर की कमाई लुट गई। हाय 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 हाय, जिनकी आवाजें बुलंद, ये हक है, ये हक है हुसैन के अकबर को रोने का। हमारे इलाके में लोग बूढ़े बाप को संभालते हैं, करते हैं मातम। अल्लाह की इस कायनात में भाईजान वाहिद गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर मारा गया तो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था, किसी ने अकबर को देखा है? जवाब में कोई तमाचा मारता था, कोई हुसैन को थी छोड़ दिया मजनून। बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशों पे आ गया। अब ये वो कयामत है जिसके लिए मैं बात मानता हूं। अकबर बाबा आ गया, बाबा मेरा सलाम। ये कयामत है, 10 मुहर्रम के दिन इससे मुश्किल वक्त नहीं आया। मैं इसी मरहले पे मिंबर छोड़ने वाला हूं। अकबर बाबा लेने आ गया, बाबा मेरा सलाम। अकबर मुझे 2 हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने में है। अकबर सीने में क्या है? बाबा सीने में बंसी है। बाबा मारने वाले ने क्या सुनते हैं? हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बंसी निकालेगा तो मारूंगा। अकबर
منبر پہ کم آئی ہے. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں علی کے لال نے کہا اکبر 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 تیرے بابا کی بینائی ختم ہو گئی, اکبر مجھے نظر نہیں آتا, ذرا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے زخم پہ رکھ. جوان نے باپ کی کلائی پکڑ کے اپنے زخم میں ہاتھ رکھا, علی کے لال نے زخم میں ہاتھ ڈالا, حسین کا ہاتھ برچھی کے پھل میں آیا, حسین نے زخم کی گہرائی دیکھنے کے لیے ہلایا, جوان لرز گیا, سر سے لے کر پاؤں تک جوان لرز گیا. ابراہیم و اسماعیل نے منہ پھیر لیا, اکبر برچھی نکال لیے, اکبر نکالی برچھی, بابا نکالیے. علی کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اکبر کی برچھی پہ نہیں رہ سکتا. علی کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, زہرا کے لال نے زور لگایا, زمین ہلی, آسمان ہلا, ماتم کی تیاری, برچھی نہیں نکلی. جوان نے کہا بابا مگر برچھی لگی نہیں ہے, بابا اس نے مار کے موڑ دی ہے, بابا مار کے تصویر ہمیں پھنس گئی ہے, اور بابا برچھی نہیں نکلنی. ساری تھاکی مجھے دیکھو, علی کے لال نے دونوں ہاتھ ملائے, علی کہہ کے زور لگایا, سر سے لے کر پاؤں تک جوان پر پا, منبر چھوڑنے کا ہوں برچھی, آخری جملہ برچھی, برچھی. میرے مولا حسین مجھے معاف کیجئے گا, میں آپ کے جوان کی شہادت کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. برچھی نہیں نکلی. حسین نے روکے گا, اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا, اکبر برچھی نہیں نکلتی, اکبر بتا برچھی کیسے نکالوں. اور ایک جوان بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پر رکھو, اور بابا برچھی میں ہاتھ ڈالو. زہرا کے لال میں بسم اللہ وباللہ والا ملت رسول اللہ, صرف برچھی نہیں اکبر کا جگر, برچھی کے ساتھ انبیاء نے عبادت چھوڑ دی, جبریل کا تاج اتر گیا. تو ولایہ ام الکتاب, ام القرآن, ام الانوار, ام العائنہ, ام المعصومین, ام العلوم, ام الہدی, ام الحسن, ام الحسین, ام المحسن. جو سعادت پروردگار دو جہاں نے ہم سب کو اس سال نصیب فرمائی ہے, ہماری زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائی. میرے مالک نے ہم پہ اس سال کیا, ہر سال یہ کرم کو مسلسل فرمائے. ہمیں ہماری زندگی کا ہر 40 قبر حسین پہ نصیب فرمائے. ہم پہنچ چکے ہیں لیکن ہم خود پسند نہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. دعا گو ہیں جو نہیں آ سکے, ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. پاکستان سے آنے والے زائرین کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو میرا مولا حسین دور فرمائے. قبر حسین کی زیارت ہر شیعہ کی خواہش ہے, ہر شیعہ کی خواہش کو پورا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھا. ایک ایسا اللہ منوانا جس گھر میں کئی خدا رہتے ہوں, وہاں ایک خدا کی وحدانیت کو منوانا, یہ میرے رسول ہی کا خاصہ تھا, یہ میرے نبی ہی کا خاصہ تھا کہ اس نے عرب کے اس بدترین معاشرے میں, اس بدترین ماحول میں, متوجہ ہیں صاحب, اس بدترین معاشرے میں, بدترین ماحول میں کہو اللہ. عرب کے لوگوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا, ایک اللہ ماننا مشکل تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے مواحد تھے اور اتنے اپنے بتوں سے مخلص تھے, وہ اتنے بتوں سے مخلص نہیں تھے. ان کے ہاں ہر موسم کا خدا تھا. میں یقین سے کہوں
मौसमों के खुदा होते थे, बारिश का खुदा और होता था। इससे बारिश मांगनी है, इससे रिस्क मांगना है, इससे औलाद मांगनी है। उनके मुख्तलिफ देवता थे, वो एक खुदा पे नहीं थे। उनके लिए एक और अल्लाह मानना मुश्किल नहीं था। मुश्किल जो चीज थी, जिसके लिए इस्लाम को बड़ा जोर लगाना पड़ा, जिसको नबी पे बड़ा जोर लगाना पड़ा, वो ये था कि वो ये नहीं मान सकते थे कि हम झूठों को छोड़ के एक सच्चे को माने। 40 काफिर रात की तरीकी में हजरत इमरान की हवेली में आए थे। उन्होंने कहा अपने भतीजे से कह, अल्लाह मनवाना है, हम मान लेते, लेकिन जिनको हमारे बुजुर्ग मानते रहे, हम उन्हें कैसे छोड़ें। फिर सच्चे को मानना पड़ता। जो रसूल ने इस्लाम कहा था वही आज हुसैन है। यहां भी सिर्फ हुसैन को मानना, ये कह के नहीं कि हम उन्हें भी माने और हुसैन को भी माने। जब उन्होंने तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने जुबान से कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह है। इस तस्लीम को इस्लाम कहते हैं। तस्लीम कर लेने को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम मस्दर है, इसी से निकला है। तस्लीम कर लिया हमने कि अल्लाह है, तस्लीम कर लिया जन्नत है, तस्लीम कर लिया जहन्नम है, तस्लीम कर लिया नबी, तस्लीम कर लिया फरिश्ते, तस्लीम कर लिया आसमानी किताबें। नबी बोलता रहा, वो तस्लीम करते रहे। तस्लीम कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। मैं आज पहली महीने से थोड़ी सी बुनियाद रखूंगा कि वाकया करबला के पीछे रूट्स क्या है। वो तस्लीम कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि वो तस्लीम करने के बाद नबी के सामने बैठ के तस्लीम करते थे। नबी की महफिल से उठने के बाद तहकीक करते थे। एक दूसरे से पूछते थे, हो सकता है कि कोई ना नजर आए और वो हवाएं चलाए, हो सकता है कि कोई ऐसा नबी हो और वो आग में जाए और आग ठंडी हो जाए, ऐसा यकीन हो सकता है कि पूरी दुनिया में पानी हो और एक नबी की कश्ती में लोग बच जाएं। नबी जो उन्हें मनवाते थे वो तस्लीम करने के बाद तहकीक करते थे। इस्लाम ने मना किया है कि जिसे तस्लीम करो उस पर तहकीक ना करो। जो चीज तस्लीम पे आ जाए वो तहकीक में नहीं आती। अल्लाह है, कोई मुबाहसा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई मुनाजरा नहीं कि आओ बैठ के तहकीक करें अल्लाह है कि नहीं है, आओ तहकीक करें मूसा आया तक नहीं आया, आओ तहकीक करें इब्राहिम आया था कि नहीं आया था। ये सारे मानते हैं। अगर आप कहें कि ये समझ में नहीं आता, जो बंदे आज कहते हैं ना कि हमें तहकीक करनी पड़ेगी, कैसे हो सकता है कि अली के पास तलवार हो और लोग दरवाजे पे आग लगा दे और अली तलवार ही ना उठाए, तहकीक करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे हो सकता है। अली 40 जगहों पे जाकर रोजा इफ्तार कर ले, तहकीक करनी पड़ेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अली ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा हो जाए, जिसे तस्लीम किया जाता है उसमें तहकीक नहीं की जाती। अगर तहकीक करनी है तो फिर तहकीक तो इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ही नबी को कुएं में फेंक दे, ऐसा कैसे हो सकता है कि नारे नमरूद गुलजार हो जाए। खुदा ने जब आले मोहम्मद की बात की है तो खुदा ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकते युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आले मोहम्मद को सिर्फ मानना नहीं, इन्हें तस्लीम करना है, और जिन्हें तस्लीम किया जाए उन पर तहकीक नहीं की। जिन्हें तस्लीम कर लिया जाए उन पे तहकीक नहीं है। अली तस्लीम पे है, ज़हरा मंजिल तस्लीम पे है, इमाम हसन मंजिल तस्लीम पे है, हुसैन मंजिल तस्लीम पे है, रसूल अल्लाह मंजिल तस्लीम पे है। जो मंजिल तस्लीम पे हो उन पे तहकीक नहीं। इन्हें मान लिया, तस्लीम कर लिया इस्लाम, तस्लीम करने के बाद दिल में रख के यकीन कर लिया ईमान। इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी यहां से समझ के जाएं। जुबान पे हो तो इस्लाम होता है, यकीन बन के दिल में उतर जाए तो ईमान होता है, और वही ईमान दिल से नूर बन के चेहरे पे आ जाए तो इत्मीनान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान है, अली वलीउल्लाह इत्मीनान है। मक्का इस्लाम, नजफ ईमान, करबला इत्मीनान। पहली दावत इस्लाम की हुई दावत जुल अशीरा, अशीर ईमान है, अशीर इस्लाम है, गदीर ईमान है, आशूर इत्मीनान है।
बस 3 चीजें सोचे जाना और 3 मजलिसों में तीनों चीजें पढ़ी जाएंगी। इस्लाम, ईमान, इत्मीनान। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान, अली वलीउल्लाह इत्मीनान है, ज़हरा ईमान है, ज़ैनब इत्मीनान। इस्लाम, ईमान, इत्मीनान। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान, अली वलीउल्लाह इत्मीनान। अली वलीउल्लाह इंसान को मुतमईन करता है, ना फिर तौहीद खतरे में रहती है। हमारे यहाँ शिया मजहब इतना लॉजिकल, इतना पढ़ा लिखा मजहब है, हम अल्लाह भी शराइत के साथ मानते हैं। बगैर शर्त वाला तो हम अल्लाह भी नहीं मानते। हम तौहीद के साथ भी अदल की शर्त रखते हैं। हमारे मजहब का कोई बच्चा भी आज तक नहीं कहता कि जो चाहे अल्लाह कर सकता है। ये नारा हमारे मजहब ने आज मुसलमान बच्चों को गुमराह करने के लिए, बेटा अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मैं मिंबर पे करबला में कहूं, अल्लाह जो चाहे वो नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में नहीं भेज सकता। अगर वो जिसे चाहे जन्नत में भेजेगा, फिर उसका अदल कहां जाएगा? भाई अगर अल्लाह जिसे चाहे तो फिर उसका अदल कहां जाएगा? फिर हमें नबियों ने, आइमा ने ये क्यों कहा है कि अल्लाह आदिल है, अल्लाह जिसे चाहे भेजेगा लेकिन अदल के साथ, अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे तौबा कबूल कर ले। ये इतना अच्छा नारा है कि बच्चों के ज़हन में अकीदा तौहीद बिठा दिया जाता है। बेटा अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। चोरी हो गई, कुछ नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। फेल हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। हर चीज में अल्लाह की मर्जी। नुकसान भी अल्लाह की तरफ से, ईमान भी अल्लाह की तरफ से, अच्छी बातें भी अल्लाह की तरफ से, बुरी बातें भी अल्लाह की तरफ से। तदबीर और तकदीर में सब चीजों का मालिक अल्लाह को बना दिया। तदबीर भी अल्लाह करता है, तकदीर भी अल्लाह करता है। अल्लाह जो चाहे, अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह जिसे चाहे। हमें पता है ये सवाल कहां बैठ के, किस लेबोरेटरी में बैठ के ये नजरिया बनाया गया है। इसके पीछे कौन सी दवा बेचना चाहते थे? अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे। ये तुमने अकीदा अपने बच्चों को इसलिए बताया है, अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे। हमें पता है तुम इस जिसे चाहे में किसे भेजना चाहते हो, तुम इस जिसे चाहे में किसे माफ करवाना चाहते हो, तुम इस जिसे चाहे में किसको जन्नत में लेके जाना चाहते हो। वो भी मेरे पूरे का मजमा है। तो मैं इस सवाल की कदर यही बनाने लगा हूं, अगर अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे तो फिर ये अकीदा तेरे बुजुर्गों का नहीं था, इसलिए कि उन्होंने मेरे मौला हसन से आके कहा था, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। इसका मतलब वो भी मानते थे कि वो जिसे चाहे जन्नत में नहीं, ये जिसे चाहे। मोहताज है आलम इस्लाम। एक बीज जमीन में बोना है, उसे जमीन के अंदर जाना है, उसके अंदर से पौधा निकलेगा, फिर उसके पास तना आएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर टहनियां आएगी, फिर उसके बाद फल आएगा। डायरेक्ट फल नहीं ले सकते क्योंकि आलम इस्लाम में से नबातात आलम इस्लाम में से, जमादात आलम, हैवानात आलम इस्लाम में से। ये सर्कल जो चल रहा है ये है आलम इस्लाम का। इसमें कोई चीज भी ना, अब इसको ऐसे करें ये ऑटो पे चल रहा है, इसमें अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया कि ये आलम इस्लाम है, ये प्रोसेस में सब कुछ होना है। अब कायनात में जो चीज चल रही है वो इस प्रोसेस के दाश नहीं होगा। हर चीज यहाँ वसीले की, खुदा ने यहाँ कह दिया यहाँ वसीले वसीले, यहाँ जितने भी वसीले बनाओगे आलम इस्लाम है, ये है आलम कुल। खुदा ने खबरदार, यहाँ कोई वसीला नहीं, यहाँ जो चाहेगा वो होगा। ये सब कुछ लोहे महफूज के ताबे है। यहाँ पर लिखा जा चुका है कि ये होगा, ये तकदीर के ताबे कायनात चल रही है। यहाँ तकदीर नहीं, यहाँ अमर है, हो जा तो वो हो जाता है। गर्दन कटवाओ और जुबान कटवा के करबला में फेंक दो। हमने आले मोहम्मद को इसलिए नहीं माना कि ये सिर्फ असबाब के ऊपर इख्तियार रखते हैं, ये सिर्फ असबाब पे इख्तियार नहीं रखते, ये अमर पे इख्तियार रखते हैं। हसन ने कहा था शर्म नहीं आती औरत होकर मर्दों में आ गई, ये सबब नहीं अमर था। हुसैन ने राहिब से कहा क्या मैंने तुझे दे दिए, ये सबब नहीं था। अब यहां तो ये मानना पड़ेगा कि यहां अगर ये वसीला बन रहे हैं तो खुदा अपने साजे में शरीक बना, लेकिन वो ला शरीक है।
اس کی وحدانیت کو بھی کہیں نہیں جانے دینا, اس کی ربوبیت کو بھی تھام کے رکھنا ہے, اس کو بھی یکتا ہی ماننا. پھر مانو کہ وہ جس لہجے میں کل کہتا ہے نا وہ ہی ہے, جو ارادہ کرتا ہے نا وہ ارادہ ہی ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں, چلیں اور آسان کر دیتے ہیں. ایک مثال سچ اور حقیقت والی میں. ایک چیز ہوتی ہے سچ علی بات, اور ایک چیز ہوتی ہے حقیقت. بسم اللہ صلوات سارے ذات مل کے بلند آواز. محمد و آل محمد صلوات. سچ اور ہے حقیقت. دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں, دنیا میں رائج ہوتی ہیں مگر ہیں سچ حقیقت میں. مثال, آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو تارے چھوٹے نظر آئیں گے, چاند بڑا. یہ سچ ہے, حقیقت میں. 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے والے لوگ یہ سمجھتے تھے یہی سچ ہے, یہی حقیقت. پھر سائنس نے ترقی کی, علم میں پختگی آئی, اور انسان نے چاند پہ جا کے دیکھا کہ بھائی یہ بڑا نہیں ہے, یہ ہمارے کرۂ ارض کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا نظر آ رہا ہے, تارے دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. تب سے سائنس نے دنیا کو یہ فلسفہ مذہب کی قید سے آزاد ہو کر کہہ دیا کہ ہر قریب رہنے والا بڑا نہیں ہوتا. ہر قریب رہنے والا کچھ رہتے دور ہیں. چاند تو مٹی کا ڈھیر ہے, چاند تو چمک نہیں رہا, پیچھے سورج ہے جو چاند کو روشنی دے رہا ہے. کبھی کبھی کوئی نہ نظر آن کے بھی نظر آنے والے کو نور دے دیتا ہے. چلو اب کربلا میں بیٹھ کے یہ جملہ کہیں نہ سمجھا گیا تو میں نے اس سے پہلے تو کبھی پڑھا نہیں, اب کربلا میں پڑھوں گا تو تاکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں گے ہر قمر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورج ضرور ہوتا ہے. کبھی عباس کے حرم میں کھڑے ہو کے حسین کے حرم کو دیکھنا, ہر چاند کے پیچھے کوئی سورج ہوتا ہے. اور عباس اندھیروں کا چاند نہیں, سورجوں کی حویلی کا چاند ہے. اندھیرے کا چاند اور ہوتا ہے, سورجوں کا چاند اور ہوتا ہے. سچ اور ہے, حقیقت اور ہے. جناب سیدہ نے جب کہا نا کپڑے درزی کے پوچھتا ہوں, اس نے کہا میں درزی ہوں. اہل سنت نے بھی اس واقعے کو لکھ دیا, اہل حدیث نے بھی لکھ دیا کہ زہرا نے کہہ دیا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے, اور فرشتے نے آگے کہہ دیا تھا کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. مجھے آج تک اس میں ڈیبیٹ ہوتی سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئی کہ جب کپڑے درزی کے پاس تھے ہی نہیں تو پھر زہرا نے کہا کیوں, اور جب زہرا نے کہہ دیا تھا تو فرشتہ درزی بن کے آیا کیوں. سب کہتے جب بی بی نے کہہ دیا تھا کہ ہیں تو پھر اللہ کو اس ہیں کو ثابت کرنا پڑ گیا, جبکہ ان کا وجود نہیں تھا, کوئی کپڑے نہیں تھے, کوئی درزی کے پاس نہیں گئے تھے. لیکن بی بی نے کہا دیا کہ ہیں, تو خدا نے کہا کیونکہ حقیقت کبریٰ کی زبان سے نکل آیا ہے تو اب اللہ نے اسے حقیقت بنا دیا. اس سے پہلے کوئی بحث نہیں کرتا کہ بھائی ڈیبیٹ تو کرو کہ کپڑے کہیں تھے بھی کہ نہیں تھے, کس دکان سے خریدے گئے تھے, کس کو لا کے دیے گئے تھے. وہ کہتے بحث کا دروازہ بند ہو گیا. زہرا نے کہہ دیا تھا ہیں تو پھر ہیں, ہیں تو پھر ہیں, ہیں تو پھر ہیں. اگر زہرا کا ہیں تمہیں ہیں لگتا ہے تو پھر دربار خلافت میں کھڑے ہو کے زہرا نے کہا تھا فتح میرا ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ کیوں, اب اس سے بحث کیوں. جب سیدہ نے بابا جی کہہ دیا تھا ہیں, جب سیدہ نے ہیں کہا تو اللہ نے فوراً ہیں کر دیا. جب زہرا نے کہا فتح میرا ہے, تب اس میں یہ ڈیبیٹ کیوں کہ رسول نے نہیں دیا تھا, کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کس کی جگیر تھی, تھی نہیں تھی, لکھا تھا نہیں لکھا تھا, دیا تھا نہیں دیا تھا. جب اس نے کہہ دیا تھا کہ ہے, وہ بھی انہی کے کہنے پہ تو تم نے یہ مانا تھا نا کہ اللہ ہے. جن کے کہنے پہ تم نے
अल्लाह को मान लिया, उन्होंने कहा है तो तुमने कहा है, देखा था, सुना था अल्लाह को, चखा था अल्लाह को, सूंघा था अल्लाह को, हवा से खमसा में आया नहीं, माना क्यों? ज़हरा के बाबा ने कहा है। अगर सदीक़तुल कुबरा, मैं कह रहा हूं फदक का डायमेंशन चेंज करो, जाविया चेंज करो, आओ फदक और जाविया से देखते हैं। जब जनाब ज़हरा ने कह दिया था, जानबूझ के हमारे बच्चों को इस बहस में उलझा रहे हैं, बेटा ये खजूरों का बाग था, ये चंद खजूरें थी, ये 4 खजूरें थी, ये 2 खजूरें थी, ये सब था, ये वो था, जितनी बड़ी खजूरें थी, नहीं ये 4 खजूरें लेने के लिए सैयदा का, तो ये 4 खजूरों का मामला था, तो इतने बड़े बंदे ने फिर दी क्यों नहीं? तो इसमें ज़हरा की जगीर छोटी नहीं हो रही, छीनने वाले का जर छोटा हो रहा है। जब हम पूछते हैं कि हजरत आदम को जन्नत से क्यों निकाला था, उन्होंने आदम ने जन्नत में से फल खा लिया था, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था, तो जन्नत ज़हरा की जगीर है, ज़हरा की जगीर से बाद फल खा ले और अल्लाह जन्नत से निकाल देता है, और कोई पूरा बाग ही खा जाए। चलो ये बात मैंने गैर शिया से की थी, मैं एक अपील शिया से भी कर लेता हूँ। जिन शियों को अली अच्छा नहीं लगता, जिन शियों को अली की मौलायत अच्छी नहीं लगती, जिन शियों को अली की विलायत अच्छी नहीं लगती, मैं उन शियों से बात कर लेता हूँ। गैर शिया ने कहा नहीं, आदम ने जन्नत से फल खाया था, शिया ने कोई फल नहीं खाया था, आदम से तरके औला हो गया था, आदम से तरके औला हो गया था, आदम से तरके औला हो गया था। कितना मुहज्जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आदम से तरके औला हुआ था। जो औला छोड़ दे जन्नत से निकल जाए, और जो अली जैसा मौला छोड़ दे। कुबरा ने कह दिया है तो है। हसन ने कहा शर्म नहीं आती औरतों के मर्दों में, है तो है। ये आलम इस बात चांद है, इतनी दुनियाएं तख्लीक हो चुकी हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि खुदा की कहकशाएं, कहकशाओं में कहकशाएं अकबर, उनके अंदर कहकशाएं असगर, उसके अंदर बनने वाली कायनात, उस कायनात के अंदर रहने वाले सियारे, उन सियारों में से एक सियारा, उस सियारे का नाम ज़मीन, उस ज़मीन के अंदर एक मुल्क, उस मुल्क के अंदर एक शहर, उस शहर के अंदर एक गाँव, उस गाँव के अंदर एक मस्जिद, उस मस्जिद के अंदर एक महराब, उस महराब में 2 रकअत की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछ रहा है कि अली क्या? हमें से हर कोई अगर सोचे तुमने हुसैन की शहादत के बाद करबला में आने वालों को देखा, कभी किताबों से पढ़ना कि इस करबला का म्यार अल्लाह की नजर में क्या, अगर इसकी खाक शिफा बनी है तो उसके अंदर राज है। हुसैन ने जमीन को अगर कुछ वजूद अता किया है तो इसकी वजह क्या है? यकीन कीजिए ये हुसैन ही का कर्म था।
जो हम जैसे खाकी और खताकार करबला में बड़ा अल्लाह का खास करम होता है जिसे मेजबान अच्छा मिल जाए। ये अल्लाह का एहसान होता है कि किसी को अच्छा मेजबान मिले। तुम्हारे मेजबान का नाम हुसैन है। सबसे पहला कर्म सुनते जाना, तुम्हारे मेजबान का नाम। अच्छा मेहमान अच्छे मेजबान के पास जाए, मेजबान अच्छी खिदमत करे तो मेहमान वक्त रुखसत एक लफ्ज जरूर कहता है, कभी हो सके तो हमारी तरफ भी आइए। एक बार करबला से जाते हुए हुसैन से जरूर कहिएगा, आका अच्छे मेजबान होने की हैसियत से आपने हमारे गुनाहों पे अपने करम की चादर डाली, हमारी खताओं को नजरअंदाज किया, हमें अपनी कब्र के करीब बैठने की जगह दी, हम हायर हुसैनी में दाखिल हो गए, हम तेरे वफादार के खैमे में बैठे रहे, हम इस सरजमीन को चूमते रहे। हुसैन इब्न अली, आपने हमें आसाइशों में रखा, आसानियों में रखा। अब हम जा रहे हैं, मौला कभी आप भी गरीबों के घर आइएगा, मौला कभी आप भी हमारे घर आइएगा। फिर जब करबला से जाओ तो हर शब जुमा ज़ियारत हुसैन पढ़ के हुसैन का इंतजार करना है। एक चिराग जला देना, एक लाइट जला देना, बैठ जाना, मौला वादा लिया था कि आप आएंगे, यकीन करो हुसैन तुमसे मिलने के लिए जरूर आए। और जो यकीन चाहता है कि हर सूरत में मैं मौला हुसैन को अपने घर देखना चाहता हूं, लो मैं तुम्हें, ये मेरा नहीं, मुजर्रब तरीन करबला के उर्फा का अमल तुम्हें देने लगा हूं। वो कहते अगर तुम यकीन जमानत लेके जाना चाहते हो कि हुसैन हर हालत में तुम्हारे घर आए, तो कोशिश करना अपनी बेटी को हुसैन के हरम में भेजना। 4 साल की बच्ची जाके हुसैन को दावत दे के आए और जाके कहे, मौला मैं आपको अपने घर में लाना चाहती हूँ। हुसैन मासूम बच्चियों की सदाएं बड़ी जल्दी सुनता है। जिंदगी में मुश्किल आए, बेटी लेके अलमे अब्बास पे चले जाया करो, खुद पीछे खड़े होकर बेटी से कहा करो, क्योंकि अब्बास की सुन्नत है। अब्बास मुश्किल वक्त में सकीना को सकीना हुसैन बेटी अब्बास की सिफारिश का नाम। हुसैन की सिफारिश को, अब्बास की सिफारिश को सकीना कहते हैं। बस सादात तो गैर सादात। मेरे पास ने आपको सुनाया है अकबर का घोड़े से। एक मैंने गुजारिश कर ली, आवाज थोड़ी तेज करना, इसके बाद बहुत कम। एक मैंने गुजारिश कर ली, एक जो गुजारिश आता और करूंगा, ज़ाहिरीन ग्रामी करो, करबला में आओ, हुसैन को जरूर अपने घर की दावत देके जाओ। दूसरी गुजारिश, जितनी देर करबला में रहना, क्योंकि आप करबला को सोचते हैं, देखते नहीं। आपके जहन में करबला, वो करबला जो सुनी हुई है वो सिर्फ जहनों में है, आंखों में आज की करबला। इस होटल से उस होटल की तरफ जाना है, इस सरब से सरब की तरफ जाना है। और मैं तुम्हें एहसास बता दूं कि तुमने हुसैन का एहसास कैसे करना है। अपने होटल से निकल के हरम की तरफ जाते हुए जमीन को देखना, बुलंद बाला इमारतों को न देखना, जमीन की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना सोचना, अल्लाह जाने यहां से कासिम की लाश चुना है। एहसास पैदा करना है ना अपने ऊपर, एहसास पैदा करना है उसमें। हर में हुसैन में जाके किसी कोने में बैठ जाना और आंखें बंद करके सोचना, कितना मुश्किल होगा बहन के सामने भाई का कत्ल होना।
तुम आए हो आबाद हुसैन से मिलने, तुम उस वक्त आए हो जब हुसैन का हरम बन गया। मैंने कल भी घर में अबुल फजल अब्बास में मजलिस पढ़ते जुमला कहा था, ऐ अरब वालों, ऐ इराक वालों, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने अब्बास की कब्र बड़ी बना दी। अगर अब्बास की वही कब्र होती तो शायद ज़ाहिर असगर की कब्र समझ के चले जाते। आज तुमने आबाद हुसैन देखा है, हुसैन का खुदाम हो, कालीन बिछे हुए, सोने का गुंबद, चांदी की जरी, नौकरों के पहरे, पानी की सबीलें, खाना बांटने वालों की आवाजें। तुम आए हो 1400 साल के बाद आबाद हुसैन को मिलने। इतने आबाद हुसैन को मिलने के बाद भी तुम्हें घर जाते बड़ी तकलीफ होगी, तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगेगा। ये कायनात का पहला सफर है जहां से मुसाफिर का जाने को जी नहीं चाहता। ये कायनात का पहला सफर है जहां से मुसाफिर का पलटने को दिल नहीं करता। न माँ को बच्चे याद आते हैं, न बहनों को भाई याद आते हैं। हर वक्त हुसैन, हर लम्हे अब्बास, कभी कब्र अब्बास पे, कभी कब्र हुसैन पे, कभी रौज़ा अब्बास पे, कभी रौज़ा हुसैन पे। ज़ाहिर के दोनों भाइयों के साथ इतना दिल लग जाता है, उसका घर जाने को जी नहीं चाहता। अब मैं तुम्हारे रोने के लिए जुम्मा पढ़ने लगा हो, इतना आबाद हुसैन छोड़ के जाते, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अब सोच उस बहन का कलेजा जिसने भाई की लाश टुकड़ों में छोड़ी थी, जिसने बगैर कफन के छोड़ी थी, रो रो के कह रही थी, हुसैन मैं कैसे करबला से चली जाऊं, हुसैन मेरी चादर होती, मैं तुझे कफन दे देती, मेरे हाथ खुले होते, मैं तेरी कब्र बना देती। लेकिन ये कह के बीवी चली गई, हुसैन मैं दोबारा करबला आऊंगी, तेरा एक चेहरा जरूर करूंगी। ये कहते पहली बहन भाई की लाश से गई, दूसरी बहन ने सर के बाल खोले, वो कहती हुसैन मेरी भी बड़ी आस थी, मैं तेरी लाश में बैठ के रहती, लेकिन हुसैन एक बार करबला जरूर आऊंगी, जी भर के तुझे रोने के लिए तेरी कब्र पर जरूर आऊंगी। और तू आकर के जा रही हो, जब मैं आऊं तो तेरी कब्र बनी हुई हो, मैं तेरी कब्र पे सर के बाल खोल के हो। ये कह के दूसरी बहन भी चली गई, तीसरी बहन ने दुआ की, मेरे नजर दोबारा कर रहा हो, मेरे गरीब की कब्र बनी हो। ये कह के तीसरी बहन भी चली गई। आखिर में 4 साल की बेटी आई, बाबा की लाश में हाथ मार के बैठ गई, रोक लगी, बाबा मुझसे आखिरी बार नहीं हो, इनमें से हर किसी ने आना है, तेरी सकूना ने नहीं आना। बाबा मैं करबला नहीं आऊंगी, बाबा मेरी आस टूट गई, मेरा अब्बास मारा गया। अब क़यामत तक हर कोई आएगा, नहीं आई तो सकीना मिल गई। मेरे भाई काजी बरादरी ये खुशकिस्मत है, ये अभी 2-4 दिन पहले सकीना की कब्र से होके आए हैं। इनके सरों पर तो रहमत हो, कितना इंतजार कर रही है हुसैन के नज़ारों का। रो रो के कह रही है, आज मेरे बाबा के पर सर हो, मैंने अपनी आंखों से बाबा के पर होता देखा। शाम रह गई हुसैन की बेटी, नहीं आ सकी हुसैन की बेटी। इस शहजादी के मुसाइब और इसकी 4 साल की जिंदगी मैं एक पलड़े में 4 साल रखूं, एक पलड़े में सकीना पे आने वाले मुसाइब रखूं। सादात जुमला सुन के मुझे माफ कर देना, इतनी इस शहजादी की सांसें नहीं है जितनी इसके ऊपर मुसीबतें आई हैं। 7 हमले किए हुसैन ने, उस लम्हे हुसैन ने हमले किए जब हुसैन का कोई भी नहीं रह गया था। भाई मारे गए, बेटे मारे गए, तन्हा रह गया हुसैन। मौला हुसैन ने तमाम हुज्जत के बाद तलवार को न्याम से निकाला। हुसैन ने अल्लाहु अकबर कह के पहला हमला किया, फौजें करबला से भाग गई। मकाम जुल्कफल और मकाम कूफा तक फौजों को दौड़ा के तन्हा हुसैन करबला में वापस पलटा।
वापस पलट के हुसैन यूं भागती हुई फौजों का इंतजार कर रहा था। फौजें दोबारा आई, हुसैन ने दूसरा अल्लाह अकबर कह के हमला किया। हुसैन लड़ते जा रहे थे, कभी अकबर का कत्ल याद आता था, कभी कासिम के बदन के टुकड़े याद आते थे। 7 हमले किए हैं हुसैन ने। मक्तल कहती है इतने यजीदी मारे हुसैन ने, इतनी लाशों के ढेर लगाए हुसैन ने, लेकिन मक्तल की 56 किताबों में तो मुझे एक मक्तल में मिला कि चौथा हमला इसलिए खतरनाक था। हुसैन चौथा हमला करने से पहले अब्बास की लाश के करीब से गुजरे थे। हुसैन ने अब्बास की कटी हुई लाश देखी। हुसैन ने तलवार को निहाल से निकाला। हुसैन ने कहा मेरे गाजी के कातिल हो, हम मेरे अब्बास को कत्ल करने वाले, हम मेरी कमर को शिकस्त दी। हर हमले पे गरीब ज़हरा गजबनाक होकर फौजों पे गया। 7वां हमला करने के लिए हुसैन फुरात के किनारे पे थे। यहाँ आवाज़ें परवरदिगार आई है, नफ्से मुतमइन्ना पलटा अपने रब की जानब। हुसैन ने तलवार को न्याम में रख दिया। गरीब ज़हरा ने घोड़े की लगामों से हाथ निकाल दिए। हुसैन ने दोनों हाथ अपने जानों पे रख दिए। अब मुझे माफ कर देना, जिसके हाथ तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। कोई हुसैन को दाएं से तीर मारता, कोई हुसैन को बाएं से तीर मारता। बहनें दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। गरीब ज़हरा कभी बाएं गिरते थे, गरीब ज़हरा कभी बाएं गिरते थे। अब मैं सांस नहीं लूंगा, जो रो सकता है रोते जाना। मैं सामने से शबस में रबी आया, इस मलाओ में हुसैन के पहलू पे नेज़ा मारा। गरीब ज़हरा बाएं पहलू पे चले गए। इधर से अखरस इब्न मुर्तद आया, इस मलाओ ने हुसैन के बाएं पहलू पे नेज़ा मारा। गरीब ज़हरा बाएं तरफ चले गए। हुसैन ने घोड़े की गर्दन पे अपने हाथ रखे। या हुसैन ने बुलंद होकर खयाम को अपनी बहन को सलाम करना चाहा। या हुरमलाए मलाओ ने सैशोबा तीर लोगों वाला तीर इसने अपनी कमान में डाला। इसने हुसैन के सीने का निशाना लिया। इसने हुसैन के सीने पे तीर लोगों वाला तीर मारा। तीर हुसैन के सीने से हुसैन की कमर से पार गया। अगर हुसैन तीर आगे से निकाल के सैशोबा होने की वजह से गरीब का जिगर बाहर आ जाता। मक्तल कहती है हुसैन को अपने घोड़े की जीभ में छुटे। हुसैन ने दूसरे से तीर निकालना चाहा। एक कमीने के हाथ में लोहे का गुर्ज था, इसने हुसैन के सर पे मारा। गरीब ज़हरा अब घोड़े की जीभ बना रहा। हुसैन की आवाज़ अम्मा में गिर गया। अम्मा में गिर गया। अम्मा तेरा लाल घोड़े की जीभ से गिर गया। मैंने आधे जख्म छुपाए हैं जो हुसैन के बदन पे लगे। हुसैन घोड़े की जीभ से गिरे। हुसैन करबला की रेत पे आए। कहां पे? जहां मकाम साहिब ज़मान है, क्योंकि फुरात के किनारे से हुसैन लड़ते हुए वापस पलट रहे थे। मकाम साहिब ज़मान तक हुसैन अपनी बहन को मिलने खेलने जा रहे थे। रास्ते में फौजों ने हुसैन को घेर लिया। हुसैन जख्मी होकर घोड़े की जीभ से गिर गए। हुसैन खाके करबला पे, मैं करबला में मुहतात होकर मुसाए पढ़ने का आती हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है आवाजों को अब्बास सुन रहा है, आवाजों को हुसैन सुन रहा है। गरीब ज़हरा अलीबाद तशहाहुद की हालत में, हुसैन तशहाहुद की हालत में दोनों हथेलियां रेत पे रख के गरीब ज़हरा की सांसें चल रही थी। तीरों पे तीर, सर पे गोश, सीने का जख्म खुला हुआ। गरीब ज़हरा दोनों हाथ करबला की खाट में रख के बैठे जा रहे। फजल अब्बास मुझे माफ कर देना। मलाउन आगे बढ़ा, उसने हुसैन के दाएं बाजू पे तलवार मारी। गरीब ज़हरा दाएं बाजू पे आ गया। शमस आगे बढ़ा, इसने हुसैन के दाएं बाजू पे तलवार मारी। गरीब ज़हरा मुंह के हुसैन मुंह के बल करबला की रेत पे आए। लहू से भरा हुआ हुसैन, जख्मों से चूर हुसैन,
जख्मों से टूटा हुआ हुसैन, गरीब का सर करबला की खाक पे था। हुसैन की सांसें चल रही थी। फौजें घोड़ों से उतर के टीलों से देखने आई। हर कोई कह रहा था नहीं अभी जिंदा है, अभी सांस ले रहा है। ये घोड़ों से उतर उतर के हुसैन को देख रहे थे। उमर इब्न साद ने फौजों को रोका। इससे तो कोई है जो इसकी गर्दन काट कर लाए? अब हौसला करने को कोई है जो इस जख्मी की गर्दन काटे? जितने भी जालिम थे कदम पीछे हटाने शुरू किए। इसकी नजर एक नसरानी पे पड़ी जो लड़ने नहीं आया था। लश्कर अश्किया में मक्तल कहती है इसने घोड़े यजीद के लश्कर को दिए हुए थे। ये घोड़ों की वजह से करबला में था। ये नसरानी था। उमर इब्न साद से किसी ने कहा इस नसरानी को भेज। इस नसरानी को बुलाया। कहने लगा तुम्हें इतना माल लेके दूंगा, तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दे। कहने लगा क्या? कहने लगा वो तो जख्मी नहीं है, इसकी गर्दन काट ला। अब जुमला सुनना, मैंने रोका जुमला। नसरानी टीलों से नीचे उतरा, हुसैन के करीब जाकर हुसैन को देखा, वापस जाकर खंजर फेंक कर रख अपना माल। कहने क्यों? कहने क्यों कत्ल करता है? थोड़ी देर बाद खुद ही मर जाएगा। मैं इसके करीब गया, ये इतना जख्मी है, इतना जख्मी है, इसकी गर्दन काटने की जरूरत नहीं। उमर इब्न साद कहता है तूने अपनी दुनिया बर्बाद कर ली, तुझे माल दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता था, अगर तू गर्दन काट लेता। नसरानी ने दोबारा खंजर उठाया, हुसैन के करीब गया। गरीब ज़हरा के रुखसार करबला की खाक में थे। हुसैन की आंखें लहू से भरी हुई थी। हुसैन ने अपनी आंखों को खोला। नसरानी ने हुसैन की आंखों में चमकने की, इसने खंजर जमीन पर रखा। जमीन में बैठ कर हुसैन के सर को देखा। सर को देख के करीब आके कहने लगा सच बता मुबाहले वाली फातिमा तेरी क्या लगती है? इतना कहना था हुसैन के न भूले। आवाज आए कौन मेरी माँ का नाम कैसे जानता है? पहले सच बता मुबाहले वाली ज़हरा तेरी क्या लगती है? हुसैन को तो मौसी फातिमा को देता है जो मुबाहले में मोहम्मद के हाथों में गया था। इसने कहा जब मैं तेरे करीब आया, तेरी माँ फातिमा तेरा सर अपने सामने पर रख के मुझे कह रही थी मरियम को तेरी शिकायत करूंगी, ईसा को तेरी शिकायत। अगर तूने मेरे बेटे को कत्ल किया, अगर तूने मेरे बच्चे की गर्दन काटी, मैं मरियम को तेरी शिकायत करूंगी, मैं ईसा को तेरी शिकायत करूंगी। उसने खंजर जमीन पर फेंका, करबला के टीलों से दौड़ा। उमर इब्न साद को लगा अल्लाह तुम पे लानत करे, अपने नबी का बेटा कत्ल करने लगे हो। और मुझे तुमने बताया नहीं तुम्हारे नबी का बेटा है। ये चीखता हुआ करबला के टीलों से दौड़ा। उमर इब्न साद ने कहा अगर ऐसे ही कातिल वापस जाते रहे मेरी फौज में बगावत न फैल जाए। इसने शिमर मलाउन को करीब बढ़ाया। कहने लगा किस चीज का इंतजार कर रहा है? गर्दन काट हुसैन की, जंग खत्म करें, फतह का तबल में जाए और जाए। ये मलाउन करबला के टीलों से उतरा। गरीब ज़हरा ने शिमर को आते देखा। हुसैन कमर के बल करबला की खाक पे आया। हुसैन करबला की खाक पे आया। ये मलाउन करीब आया। उधर से 4 साल की बेटी खेलने के दरवाजे। अब करबला में दुआ करना मेरा अल्लाह कोई बेटी मरता हुआ बाप न देखे, कोई बेटी कत्ल होता हुआ बाप न देखे। हुसैन बेटी से मिलने के लिए
हुसैन करबला की रेत पे उठे। अब मैं कोई जुमला नहीं सुनाऊंगा, अब मैं कहने लगा हुसैन का कताल, अपने जिगर को संभाला। हुसैन करबला में जमीन पे उठ के बैठे, उस मलून ने हुसैन के सीने पे हाथ रख के धक्का दिया। हुसैन करबला की रेत में गिरे। ये मलून हुसैन के सीने पे बैठा। मौला हुसैन ने उसका चेहरा देखा, आवाज सबक का रसूलुल्लाह, सबक का रसूलुल्लाह। सच कहा था मेरे नाना ने, शिमर मलून के बाद क्या कहा था? हुसैन के बाद जहां तुम बैठा है, ऐसे मैं नाना के सीने में बैठा था। मेरा बचपन था, मेरे नाना ने मेरे सीने के बटन खोले, मेरे सीने को छूना और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा नाना क्यों रो रहे हैं? मुझे हुसैन की गलत याद आ गया। तेरे सीने पे कायनात का एक शकी तरीन शख्स बैठेगा, जिसका चेहरा खंजीर से मिलता होगा, वो तेरा कातिल होगा। मैंने तेरा चेहरा देखा, मुझे नाना की बात याद आ गई। मैं गलत करूंगा, माफ करे। जब हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने कहा तो तेरी शक्ल खंजीर से मिलती होगी। उसने बायां हाथ हुसैन की दाढ़ी पर रखा, इसने बाएं हाथ के साथ हुसैन के चेहरे पर तमाचा मारा। करबला से, खुदा से अब्बास की लाश बार बार उठी। हौसला, हौसला, जो आंखें खुश हैं, जो आंखें खुश हैं, आप फिर मातम की तैयारी करना। मैं एक कोशिश और करता हूं ताकि कोई आंख यहां से खुश न उठे। मकतल में क्या पढ़ते हैं मिंबर पे? हुसैन को पसे गर्दन ज़िबा किया गया। शिमर बिरादर हुसैन के सीने पे था। ज़ियारत नहिया हरम में पड़ी हुई है। कभी ज़ियारत नहिया के तर्ज में पढ़ना, 12वें इमाम के लोहे, उसमें एक सदर आएगी, अस्सलामु अलैका या शहीद नहर लहू, ऐ वो शहीद जिसे नहर किया गया हो। हर जानवर नहर नहीं होता, हर जानवर ज़िबा होता है। ऊंट को नहर किया जाता है, ऊंट को छुरी से ज़िबा नहीं किया जाता, उसके हलक में नेज़ा मारा जाता है ताकि उसकी शहरत हो, उससे हलक से निकल जाए। मेरा बारना कहता मेरा सलाम हो मेरे उस बाबा पर जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया था और गर्दन के बराबर हिस्से में नहर किया गया था। शिमर हुसैन के सीने पे था। ये सलाम बिन अंश करीब आया, इसे शिमर हुआ एक मरतबा तोड़कर उसे कत्ल कर रहे थे। ये मला हुसैन के सीने पे आया, इसने टूटा हुआ नेज़ा हुसैन के हलक में मारा। ज़रूर है सहरा के हलक में नेज़े का लगना था। हुसैन की आवाज़ नेज़ा हलक में मारा गया, तीर सीने में मारे गए, नेज़े पहलू में मारे गए। सनान को हुसैन के सीने से शिमर ने उतारा। गरीब ज़हरा ने करवट ली, हुसैन ने पेशानी सजदे में रख दी। हुसैन की सबूरन कदूस की तस्वीर जारी हुई। ये शिमर मलार हुसैन की पुष्ट पर सवार हुआ। इसने जेब से खंजर को निकाला, इसने हुसैन की जुल्फों को हुसैन की गर्दन से हटाया। इसने गरीब ज़हरा की गर्दन को पहली जर्ब मारी, इसने हुसैन की गर्दन में दूसरी जर्ब मारी। इसने तीसरी और चौथी जर्ब मारने के बाद इसने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला। गरीब ज़हरा ने अपना चेहरा खोला, ये देख कहता तेरी गर्दन से लहू क्यों नहीं आ रहा, तू मेरे हाथों कत्ल क्यों नहीं हो रहा? हुसैन की आवाज़ आई मेरी पुलिस से नीचे उतर, मैं तेरा कत्ल आसान करूं। ये पुलिस से नीचे उतरा। हुसैन की आवाज़ आई अल्लाह हाथ हटा लो, अल्लाह हाथ हटा लो। ज़्यादा हसरत थी कि मैं अपने बाबा का चिन्ह करूं, तो बहनें तो आई हैं लेकिन जो नहीं आई उसको पुरस्कार देना। क्या देखा सकीना ने? अरे खाके परगी रही बेची दहक अरे बाप की। ज्यादा दूर नहीं हो तो मक्तल हुसैन से, जिसके दिल में कब्र हुसैन है। सुनो गुरबत, अगर एक शहजादी के सामने, एक 4 साल मासूमा के सामने उसके बाबा को ज़िबा किया जाए,
اس کے دل میں کیا حسرت پیدا ہو سکتی ہے؟ ارے روک لے ہاتھ کو شاید سکینہ کی حسرت ہے. ارے روک لے ہاتھ بیٹی نے رکھ کر دیکھا چند قدموں. ایک بار جتنی آزادار جانتے ہو نا سکینہ بی بی کی حسرت تھی اپنے بابا کے آزادار ہو. بیٹی نے رکھ کر دیکھا چند قدموں. ایک بار جتنی آزادار جانتے ہو نا سکینہ بی بی کی حسرت تھی اپنے بابا کے آزادار ہو. یا حسین 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 یا حسین. حسین سے ایک صدا آئی ہے وہ صدا سناتا ہوں جتنے ادادار ہیں. کیا کہا سائیں یہ زہرا نے. ارے کیا ہوا گئی یہ بہن نہ سکی. ارے تیرا چوری سے میں منا نہ سکی. ہاں بیٹی تیری بھیڑ پر صدا نہ کی. میری محنت سور گئی بھیا. ہے کیا ہوا گیا
کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا کا لہو شہ کی 2 سے 3 بار سننا شہزادی شام کے علی اکبر کا پرسہ اس اکبر کا جیسے 18 سال پردے میں پالا ہے جناب زینب نے اور دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا کالا ہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا بڑے نصیب والے ہو خوش نصیب ہو کے اس مقام کی زیارت کر کے بیٹھے ہو کہ جہاں میرا مولا حسین کوہنی اور قبر علی اکبر کے لاش پہ آیا ہے آؤ علی اکبر کا زین سے گرنا پڑتا ہے جو پرسہ دینے آیا ہوں ارے آواز رنگ سے آئی کہ بابا میرے بابا میں گر پڑا ارے آواز رنگ سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین